हेलो स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3/16। ये है साइन 60 जिसका वैल्यू रहता है कितना? √3/2। You can also write this as what? Sine 20, sine 40, sine 80. This is equal to how much? √3/8। याद रखो ये किस में दिया है? ये दिया है आपको डिग्रीज में। रेडियंस में 20 डिग्रीज मतलब π/9। एंगल डबल होते जाता है। दिस विल बिकम हाउ मच? 2π/9, 4π/9। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? √3/8। ठीक है, 20, 40, 60, 80 रहेगा तो इट इज 3/16। सिमिलरली, हाउ मच इज tan 20, tan 40, tan 60, tan 80? tan 20, tan 40, tan 60, tan 80, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 3। अगर tan 60 नहीं दिया है इसमें तो tan 20, tan 40, tan 80 विल बी हाउ मच? √3। हाउ मच इज cos 20, cos 40, cos 60, cos 80? cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, दिस इज हाउ मच? 1/16। 60 नहीं दिया रहेगा, डबल 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 क्या आने वाला है आपका? cos 20, cos 40, cos 80। एंगल डबल होते जा रहे हैं cos के। दिस विल बिकम हाउ मच? 1/8। ये एंगल जब भी डबल होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं cos a। एंगल डबल हो गया 2a, डबल हो गया 2 स्क्वायर a, डबल हो गया cos 2 क्यूब a। ओके, डॉट 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 अप टू cos रेज टू 2 raised to n - 1 टाइम्स a। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 raised to n टाइम्स a होल अपॉन 2 raised to n इंटू साइन है। जो भी एंगल रहेगा यहाँ तक डबल डबल होके आता रहेगा। एक आपको बढ़ा देना है, कितना हो जाएगा? 2 raised to n टाइम्स a। और जितने भी डबल हुए हैं, हियर देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स, सो इट विल बी हाउ मच? 2 raised to n। हियर देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? n टर्म्स। जितने टर्म्स रहेंगे उतना 2 raised to n आने वाला है। यहाँ देखो डबल 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 हो गए। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है, तो नीचे कितना आ गया? 2 क्यूब। जितने भी टर्म्स रहेंगे डबल होते जाएंगे, 2 raised to उतना आने वाला है। प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5। tan थीटा tan ऑफ 60 प्लस थीटा tan ऑफ 60 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू tan 3 थीटा। ओके, 60 plus theta, 60 minus theta and theta. This is equal to how much? Tan 3 theta. Similarly, sin theta, sin of 60 plus theta into sin of 60 minus theta. This is equal to 1/4 times sin 3 theta. And if it is cos theta, cos of 60 plus theta into cos of 60 minus theta, this will be 1/4 cos 3 theta। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन ऑफ a plus b into sine of a minus b, this is equal to sin square a minus sin square b। It is also equal to cos square b minus cos square a। Similarly, cos of a plus b into cos of a minus b, this is equal to
cos square A minus sin square B, it is also equal to cos square B minus sin square A. ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है उसके अलावा ये सब है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें है कि आपको वैल्यूज़ पता होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्रीज, the value of sin 15 is root 3 minus 1 upon 2 root 2. The value of cos 15 will be how much? Root 3 plus 1 upon 2 root 2. And the value of tan 15, ये याद नहीं रहेगा तभी भी चलेगा, डिवाइड कर दो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1. Similarly, the value of sine 22 and a half, this is equal to root of 2 minus root 2 upon 2. 22 and a half matlab pi by 8. How much will be cos 22 and a half degrees? Cos 22 and a half will be root of 2 plus root 2 upon 2. And how much is tan of 22 and a half? This will become how much? Root 2 minus 1. Very very important. याद रखिए प्लीज कि सॉरी tan 22 and a half is root 2 minus 1. Okay, 22 and a half means what? Pi by 8 and 15 degrees कितना आ जाएगा? Pi by 12. This is how much? Pi by 12. 15 matlab pi by 12. Similarly, how much is the value of sine 18 degrees? Sine 18 degrees is how much? Root 5 minus 1 upon 4. Sine 36 degrees. Sine 36 degrees is how much? Root of 10 minus 2 root 5 whole upon 4. How much is the value of cos 36 degrees? It will be root 5 plus 1 upon 4. And cos 18 degrees, it will be root of 10 plus 2 root 5 upon 4. ठीक है, नाउ 18 डिग्रीज मतलब कितना हो जाएगा? साइन ऑफ दिस इज पाई बाय 10 and 36 means what? Pi by 5. Very very important. Now once you know the value of 18 degrees and 36 degrees, you can find all the values which are multiple of 18 degrees और पाई बाय 10. अगर आपको बोला है फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 54 डिग्रीज, आप 54 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 36. 90 मीन्स चेंज, दिस विल बिकम cos 36 जिसका वैल्यू आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल cos 72 डिग्रीज, cos 72 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 18, तो cos 90 माइनस 18 will become how much? Sin 18. So all the values of multiple of 18 degrees आप लोग find कर सकते हो। ठीक है, now we will do problems on this first problem. If 2 sin alpha whole upon 1 plus cos alpha plus sin alpha, this is equal to x, then find 1 minus cos alpha plus sin alpha whole upon 1 plus sin alpha. ठीक है, तो अभी आपको क्या दिया है? ये यहाँ पे आपको चाहिए माइनस, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 sin alpha whole upon 1 plus sin alpha plus cos alpha. I will rationalize this because I want minus sign in the numerator. So multiply and divide by
वन प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, वो कितना है x. So this will become how much? 2 sin alpha into 1 plus sin alpha minus cos alpha whole upon a plus b into a minus b will become how much? A square minus b square. This is equal to how much? x. ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ओपन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आपको आंसर में चाहिए. नीचे सिंप्लीफाई करते हैं. 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा. What will be in the denominator? It will become 1 plus 2 sin alpha plus sin square alpha minus cos square alpha. This is equal to x. Now how much is 1 minus cos square alpha? Sin square alpha. That sin square alpha और पहले वाला एक sin square alpha है तो आपको कितना मिल जाएगा? 2 sin square alpha. अबे ढक्कन देखना. 1 minus cos square alpha is sin square alpha. Sin square alpha plus sin square alpha will become how much? 2 sin square alpha plus 2 sin alpha. What is common? This will become 2 sin alpha into 1 plus sin alpha minus cos alpha whole upon what is common? 2 sin alpha is common into 1 plus sin alpha. दिस इज इक्वल टू एक्स. इनका हो गया हैप्पी बर्थडे. तो आपको क्या मिल गया? 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होल अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा. दिस इज इक्वल टू एक्स ही है. तो इसका भी वैल्यू विल बी हाउ मच? एक्स. 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा. टिंग 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 टिंग. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. If sec theta minus tan theta is equal to a plus 1 upon a minus 1, find cos theta. Now याद रखिए, if sec theta minus tan theta is equal to k, then sec theta plus tan theta will be how much? 1 upon k. Correct? 1 plus sec square theta minus tan square theta will be how much? 1. Similarly, if cosec theta minus cot theta is equal to alpha, then cosec theta plus cot theta will be how much? 1 upon alpha. ये भी याद रखिए प्लीज. डायरेक्टली प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज गिवन? sec theta minus tan theta. This is given to be how much? A plus 1 upon a minus 1. Therefore how much will be sec theta plus tan theta? इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1. ये दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो दिस विल बिकम हाउ मच? 2 sec theta. This is equal to a plus 1 upon a minus 1 plus a minus 1 upon a plus 1. So this will become how much? A square plus 2a plus 1 plus a square minus 2a plus 1. और नीचे कितना आ जाएगा? a minus 1 into a plus 1 will become how much? A square minus 1. So how much will be 2 sec theta? 2a minus 2a will get cancelled. 2 common. A square plus 1 upon a square minus 1. 2 का हो गया हैप्पी बर्थडे. sec थीटा मिल गया. therefore what will be cos थीटा? a square minus 1 upon a square plus 1. टिंग 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 टिंग. चिंदी प्रॉब्लम. प्लीज रिमेंबर sec theta minus tan theta is equal to k. Then sec theta plus tan theta will be how much? 1 upon k. Next problem. If tan square theta is equal to 1 minus e square, then sec theta plus
tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, आपको tan की वैल्यू दी है, ठीक है भाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग सेक थीटा कॉमन ले लेते। इफ यू टेक सेक थीटा कॉमन, दिस विल बिकम हाउ मच, 1 + tan क्यूब थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। वेरी गुड। दिस विल बिकम sec थीटा इंटू 1 + tan क्यूब थीटा। sec थीटा ऊपर चला गया, cos थीटा, cosec थीटा नीचे आ गया, इट विल बिकम sin थीटा। व्हाट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा? cot थीटा इंटू tan क्यूब थीटा विल बिकम tan स्क्वायर थीटा। बल्ले बल्ले, sec थीटा को आप क्या लिख सकते हो, √1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू √1 + tan स्क्वायर थीटा विल बी 1 + tan स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2। अबे ढक्कन इंडाइसेस, हाउ मच इज tan स्क्वायर थीटा? tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया है 1 - e² रेज टू 3/2। 1 + 1 इट विल बिकम 2 - e² रेज टू 3/2। सबको कन्वर्ट किस में किया, tan में, बिकॉज tan का वैल्यू दिया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta plus k cos square 2 theta equal to 1, then find what k। ठीक है भाई, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस, साइन रेस टू 6 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा द होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा द होल क्यूब प्लस के कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ हाउ मच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? एक तो फॉर्मूला है आपके पास a + b इंटू a² माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a cube plus b cube is also equal to a plus b the whole cube minus 3ab into a plus b। ये भी यूज कर सकते हैं आप। now if you use this यहाँ पे, this will become how much, a cube plus b cube is what, a plus b the whole cube minus 3 sin square theta cos square theta into sin square theta plus cos square theta plus k cos square 2 theta, this is equal to 1। so how much is sin square plus cos square, 1, so this will become how much, 1 minus 3 sin square theta cos square theta plus k cos square 2 theta, this is equal to 1। 1 का हो गया हैप्पी बर्थडे, therefore what you will get, k cos 2 theta, k cos square 2 theta, this is equal to 3 into sin square theta cos square theta can be written as sin theta cos theta the whole square। so k cos square 2 theta, this is equal to 3 into sin theta cos theta कितना है, sin 2 theta upon 2 the whole square। so k cos square 2 theta, this will become 3 upon 4 sin square 2 theta। तो साइन कॉस स्क्वायर 2 थीटा को नीचे ले लिया तो आपका k कितना आ जाएगा, 3/4 tan स्क्वायर 2 थीटा। टिंग टिंग टिंग, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमने क्या यूज किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज व्हाट, a प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। टिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if sin theta plus cos theta is equal to 1/5, where theta is between 0 and pi, find the value of tan x। 0 and pi means which quadrant, 0 and pi means first and second quadrant, find the value of
tan theta. ठीक है, दिस इज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. Sin theta plus cos theta is equal to 1 upon 5. Squaring both the sides, what you will get? Sin theta plus cos theta the whole square. This is equal to 1 upon 5 the whole square. Sin square theta plus 2 sin theta cos theta plus cos square theta, this is equal to 1 upon 25. Sin square plus cos square is 1. 2 sin theta cos theta will become sin 2 theta. This is equal to 1 upon 25 minus 1. How much is sin 2 theta? We want tan. It is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. This will become minus 24 upon 25. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट व्हाट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा. उससे आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. टिंग टिंग टिंग. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. प्रॉब्लम नंबर 6. The value of sin pi by 15 plus sin 4 pi by 15 minus sin 11 pi by 15 minus sin 14 pi by 15 is equal to. देखिए भाई, ये किया है टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम. पाई बाय 15 प्लस साइन 4 पाई बाय 15 माइनस साइन. नाउ यहाँ पे देखिए ये कितना है? 15, करेक्ट. तो 15 पाई माइनस हाउ मच पाई इज 11 पाई? 4 पाई, बराबर है ना. तो मैंने क्या लिखा है? ये 11 पाई को क्या लिखा है मैंने? 15 माइनस 4. और 14 पाई को मैं क्या लिखूंगा? 15 पाई माइनस पाई. झेपा क्या? क्या किया है मैंने? 11 पाई को क्या लिखा है? 15 माइनस 4. और 14 को क्या लिखा है? 15 माइनस 1. नाउ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 15 प्लस साइन ऑफ 4 पाई बाय 15 माइनस साइन ऑफ पाई माइनस 4 पाई बाय 15 माइनस साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 15. 180 means no change, sign will remain sign. 180 minus which quadrant? सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव. तो ये सेम रहने वाला है साइन 4 पाई बाय 15 एंड साइन पाई बाय 15. इनका हो गया हैप्पी बर्थडे. आपका आंसर कितना आ गया? 0. फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझा? वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल, cos pi by 12 plus cos 3 pi by 12 plus cos 9 pi by 12 plus cos 11 pi by 12. This is equal to. सेम प्रॉब्लम, सेम टाइप. हम लोग क्या करेंगे? दो एंगल्स को ऐसे ही रखते हैं. पाई बाय 12, दिस विल बिकम 3 पाई बाय 12. अभी कितना है? 12. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 पाई माइनस 3 पाई. और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 पाई माइनस पाई. 12 पाई माइनस पाई इज हाउ मच? 12 माइनस पाई इज 11. और 12 माइनस 3 कितना है? 9. हो गया अभी cos पाई बाय 12 प्लस cos 3 पाई बाय 12 plus cos. This will become pi minus 3 pi by 12. This will become cos of pi minus pi by 12. 180 means change cos pi by 12 plus cos 3 pi by 12. 180 means change, no change, cos will remain cos. 180 minus second quadrant, cos is negative. 180 means no change, cos will remain cos. 180 minus second quadrant, cos is negative. तो ये प्लस माइनस. हैप्पी बर्थडे. आंसर विल बी हाउ मच? 0. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, साइन स्क्वायर. अभी देखिए पहले जो दो प्रॉब्लम्स थे और इसमें क्या फर्क है. ये क्या है? साइन स्क्वायर
पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 8। ऊपर देखिए, ये देखिए ये क्या है, सिंपल है, स्क्वायर नहीं है इधर। ये क्या है, कॉस 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 कॉस, स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो नो चेंज, आंसर हमेशा जीरो आएगा। देखिए स्क्वायर नहीं रहेगा तो आंसर कितना आएगा आपका, जीरो। यहाँ स्क्वायर नहीं है, आंसर कितना है आपका, जीरो। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आंसर कितना आएगा आपका, जीरो। यहाँ पे है स्क्वायर तो आंसर कितना आएगा, कितने टर्म से, चार, चार टर्म से तो आंसर आएगा टू। अगर छह टर्म से तो आंसर कितना आएगा, थ्री। क्या बोल रहा है बुड्ढा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये स्क्वायर है और कितने टर्म से, चार टर्म से, चार टर्म्स रहेंगे तो आंसर कितना आएगा, टू। अगर छह टर्म से आंसर कितना आएगा, थ्री। मतलब मैं दो टर्म्स को क्या करने वाला हूं, चेंज करना है मुझे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, वन। देखना भाई, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। देखिए भाई मुझे अभी चेंज करना है, चेंज करना है तो पहला एंगल कितना आना चाहिए, 90, बराबर है ना। पाई बाय 2 आना चाहिए तो ऊपर मैं लिखूंगा 4 पाई, बराबर है ना, क्योंकि ये होना चाहिए पाई बाय 2। 4 पाई प्लस पाई इज हाउ मच, 5 पाई। सिमिलरली यहां मुझे करना है चेंज, यहां है 8, ऊपर में कितना लिखूंगा, 4 पाई। 4 पाई प्लस 3 पाई इज 7 पाई। झेप रहा है क्या, स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर रहेगा तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ऑड पावर रहेगा तो नो चेंज, इवन पावर रहेगा तो चेंज। चार टर्म्स रहेंगे तो आंसर आने वाला है टू। छह टर्म्स रहेंगे आंसर आने वाला है कितना, थ्री। दो टर्म्स रहेंगे आंसर आने वाला है वन। ओके, आपको मैंने हिंट दे दिया है, वड्डा वड्डा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर, इसको सेपरेट किया तो कितना आता है, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। इसको सेपरेट किया तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। झेप रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, सेपरेट किया तो आपको मिलेगा वैल्यू। सो दिस विल बिकम हाउ मच, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 8। 90 मीन्स चेंज, कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। यहाँ स्क्वायर है, नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव ही आने वाला, इसलिए साइन के बारे में मैं सोचता ही नहीं हूँ। 90 means change, it will become cos square 3 pi by 8. What is sin square pi by 8 plus cos square pi by 8? 1. Sin square 3 pi by 8 plus cos square 3 pi by 8? 1. So this will become 1 plus 1, that is equal to 2. वड्डा मैंने हिंट दिया है, स्क्वायर रहेगा, दो टर्म्स रहेंगे तो आंसर विल बी 1। चार टर्म्स रहेंगे आंसर विल बी 2। छह टर्म्स रहेंगे आंसर विल बी 3। अगर सिंगल रहेगा टर्म्स ये रहेंगे, पावर 1 रहेगा तो आंसर विल बी हाउ मच, 0। पावर 1 रहेगा तो आंसर विल बी हाउ मच, 0। ठीक है, इवन पावर जो भी रहेगा 2 रहने वाला है। चार टर्म्स 2, दो टर्म्स 1, छह टर्म्स 3। टिंग टिंग टिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम और एक करते हैं। 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। ये मल्टीप्लिकेशन है, उधर एडिशन था, वो डिफरेंस याद रखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस पाई बाय 8
इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाय 8, डायरेक्ट लिख दूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी अभी किया था, दिस कैन बी रिटन एज पाई माइनस पाई बाय 8। 8 पाई माइनस पाई, देखना भाई एलसीएम लिया तो 8 पाई माइनस 3 पाई विल बी 5 पाई, 8 पाई माइनस पाई विल बी 7 पाई। So this will become 1 plus cos pi by 8, 1 plus cos 3 pi by 8. 180 means no change, cos will remain cos. 180 minus second quadrant, cos is negative. 180 means no change, cos will remain cos. 180 minus second quadrant, cos is negative. Now this is what a plus b into a minus b. This will become how much? 1 minus cos square pi by 8. A plus b into a minus b. This will become 1 minus cos square 3 pi by 8. झेप रहा है क्या? Now pi by 8 मतलब कितना है? 22.5, करेक्ट ना? पाई बाय 8 यानी कितना है? 22.5, और इसकी वैल्यू आपको पता है। 3 पाई बाय 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? इसको अगर हम लोग लिख सकते, एक तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। नाउ पाई बाय 8 की वैल्यू आपको पता है, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर पाई बाय 8, और ये कितना आ जाएगा? इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। अबे एलसीएम लेना ढक्कन, 8 या कितना हो जाएगा? 4 पाई माइनस पाई मतलब 3 पाई बाय 8। तो दिस विल बिकम हाउ मच? Sin square pi by 8, 90 means change, it will become cos square pi by 8. इसकी वैल्यूज आपको पता है, नहीं मालूम फिर भी ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाय 8 इंटू कॉस पाई बाय 8 द होल स्क्वायर। What is the formula? How much is sin theta cos theta? 2 sin theta cos theta is how much? Sin 2 theta. So how much will be sin theta cos theta? It will become sin 2 theta upon 2 the whole square. So this will become 1 upon 4, sin 45 कितना है? 1 upon root 2 का square. This will become how much? 1 upon 8. यहाँ अगर आपको इधर ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, आप साइन पाई बाय 8 और कॉस पाई बाय 8 की वैल्यूज आप डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकते हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 8? यहाँ पे आप डाल सकते हो रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 द होल स्क्वायर, और दिस विल बिकम रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 अपॉन 2 द होल स्क्वायर इफ यू नो द वैल्यूज। अगर वैल्यूज याद नहीं है, यहाँ क्या करेंगे? 2 sin theta cos theta is how much? Sin 2 theta. So how much will be sin theta cos theta? Sin 2 theta upon 2. समझ रहा है क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ? ओके, चिंदी प्रॉब्लम करते हैं, एकदम चिंदी। If sin theta 1 plus sin theta 2 plus sin theta 3 is equal to 3, find what? Cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3. Now sin का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? sin थीटा का वैल्यू इज बिटवीन -1 टू +1। सो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1। ये तीनों का एडिशन 3 कभी होगा? व्हेन साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3, दिस इज इक्वल टू 3 इज पॉसिबल if and only if sin theta 1 is equal to sin theta 2 is equal to sin theta 3, all are equal to 1.
ये वन किधर होता है, जब भी एंगल साइन ऑफ हाउ मच इज वन, साइन ऑफ 90 इज वन, सो ईच एंगल शुड बी इक्वल टू हाउ मच, 90, सो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, दिस विल बिकम हाउ मच, cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना रहता है, ज़ीरो रहता है, तो या आंसर इज हाउ मच, ज़ीरो। और एक चिंदी प्रॉब्लम ले लेते हैं, चलो लास्ट प्रॉब्लम। इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, देन साइन रेस टू एन थीटा प्लस कोसेक रेस टू एन थीटा। ये भी चिंदी प्रॉब्लम है, यू कैन सॉल्व दिस। इसको लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 2 साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, sin theta minus 1 the whole square is equal to 0, therefore sin theta is equal to 1, therefore cosec theta is also equal to 1। हमको पूछा क्या है, sin raised to n theta plus cosec raised to n theta, this will be 1 raised to n plus 1 raised to n, 1 raised to anything is 1, तो आंसर इज हाउ मच, 2। ये मेरा फेवरेट है, कभी नहीं आया। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज 2, तो साइन रेज टू एनीथिंग प्लस कोसेक रेज टू एनीथिंग इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, 2। साइन और कोसेक के जगह पे अगर उन्होंने डाला है कॉस और सेक, तो भी सेम आने वाला है, बिकॉज कॉस थीटा 1 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो सेक थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। कॉस रेज टू एन प्लस सेक रेज टू एन विल ऑल्सो बी इक्वल टू हाउ मच, 2। Please remember, sin plus cosec is 2, then sin raised to anything plus cosec raised to anything is how much, 2। Cos theta plus sec theta is 2, then cos raised to anything plus sec raised to anything is also equal to 2। We'll continue more problems in the next session. Thank you very much. Bye bye. Take care. Stay home.